Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, we already started a chapter Geography a trip to Bhopal. Students, in the previous video, we already discussed about the trip to Bhopal. They started the journey at 9 o'clock. उन्होंने journey कब start किया? 9 o'clock, right students? उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्रॉसिंग द रिवर नर्मदा. उन्होंने नर्मदा रिवर को क्रॉस किया और उसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स? Then they stop at a petrol pump. उसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप पे स्टॉप किया, राइट? So how much time they have taken to stop at petrol pump? They have taken 30 minutes for refill the buses. 2 buses को refill करवाने के लिए उन्होंने 30 minutes लिए, right students? Okay, and then they move forward to the trip. So they reach at Bhimbetka Falls because they are going to take a stop at Bhimbetka Falls. उन्होंने पहला स्टॉप कहाँ पे लेना था? भीमबेटका पे, राइट स्टूडेंट? तो उन्होंने भीमबेटका में स्टॉप लिया. वहाँ पे उन्होंने केव्स देखी, बहुत सारी केव बिल्डिंग्स थी जो 10,000 ईयर्स पुरानी थी. ओके, सो दे ऑलरेडी डिस्कसेस. नाउ स्टूडेंट, वी आर नॉट स्टार्टिंग द फर्दर टॉपिक विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. अब अभी हम फर्दर टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे जो टेक्स्ट बुक में है. बिफोर स्टार्ट द फर्दर टॉपिक, लेट्स डू सम ऑफ द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, जो नोटबुक में हम करवाने वाले हैं उससे रिलेटेड जो कुछ एक्सरसाइज है, जो नंबर बेस्ड है, वो मैं आपको आज करवा रही हूँ. ठीक है, देन वी स्टार्ट द फर्दर टॉपिक ऑफ टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक का जो भी टॉपिक बाकी है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट इट. एज यू नो दैट दिस इज अ नंबर बेस्ड चैप्टर, सो आई हैव गिवन द नंबर्स आल्सो टू राइट एज अ होमवर्क. ओके, मैंने आपको नंबर्स होमवर्क में लिखने के लिए दिए हैं. So till you have completed 1 to 600 numbers. Okay, so now in the further PDF also I will send the numbers, so you have to complete till 1000. Okay, so but 1 to 1000 number you already learned in the 3rd standard. आपने 3rd standard में पढ़ लिए. Okay, still here we will do the revisions. In this exercise you have to write the number names for the following numbers. हमें यहाँ पे number names लिखने हैं. Okay, that means here we have to write the spellings. Okay, so numbers are already written. Now in this video we will discuss about the number names. So number names भी आपने 1 to 30 1 to 1000 के पढ़ लिए हैं, right? Still here I have taken the number, so we will write that number names. Understood students? समझ में आ रहा है? So number names means clear about this. Your number names का मतलब होता है ये नंबर की आपको स्पेलिंग लिखनी है, right? See here, first number. So how can you read it? 1, 2 and 3 digit number, right students? 3 digit number है यहाँ पे. So आपको पता है places के according, this is the 1's place, this is 10's place and this is the 100 place. Okay, so as per the places you have to speak the number. आपको places के according number को speak करना है. So this side is of 100 place. तो क्या पढ़ेंगे? 700 and 10 and 1's के place पे जो number होता है उसको साथ में पढ़ना है. तो पढ़ेंगे 758, राइट? जैसे आप स्पीक करते हो वैसे ही आपको लिखना है. इट्स वेरी इजी, बट यू हैव टू टेक केयर अबाउट द स्पेलिंग. उसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए. जैसे आप बोलते हो वैसे ही लिखना है. क्लियर दिस? सो दिस इज हाउ मेनी डिजिट नंबर? 1, 2 and 3 digit. दिस इज कॉल्ड द 3 digit नंबर. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 700. तो 7 SEVEN 7. Do you know the spelling of 100? HUNDRED 100. Okay, 58. So you know the spelling of 50? FIFTY 50 dash करके बोलेंगे EIGHT 8. Understood? 758. Okay, तो ये जो मैंने स्पेलिंग लिखी है उसमें कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. You just learn the one time spelling of 100. So it's very easy for you, right students? So understood about it? How to write? When you write the number names, only first letter should be in capital. Others all write in small letters, right? Only first letter को capital लिखना है, बाकी सारे small में लिखने हैं. Clear this? Now next one. This is also 3 digit number. So whenever the 3 digit number comes, it starts from 100 place. Okay? And आपको 100 से बोलना है. 3 digit number means 100. Okay? So ये 2 is on 100 place. तो पढ़ेंगे हर बार हमें places नहीं लिखेंगे, right? तो हम इसको पढ़ेंगे 212. ओके, तो जैसे बोला है वैसे लिखना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे T is capital, TW 2. 100 की स्पेलिंग आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगी. तो हर बार वही लिखनी है.
by 1 to 12. So right here spelling TWELVE 12. Okay, 212. Clear this? Now next one. Now students, how many digits number here? Ones, tens, hundred, and this one is on thousand. Okay, so this is a 4-digit number. कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का. ओके, सो 4 डिजिट का नंबर है. तो हम कौन सी प्लेस पे आ रहा है आपको पता है. अपने ones, tens, hundred, and the next place is thousand. Okay, so हम पढ़ेंगे 1 is on 1000 place, so 1000. There is no number in this place, so only 1000 ही है. समझ में आ रहा है? So the same way you speak, the same way you have to write. Okay, so हम यहाँ पे लिखेंगे O is capital, O and 1. What is the spelling of 1000? thousand. Okay, so learn the spelling of 1000 and 100. So it's very easy for writing the number names. Okay, so this is a 1000. Right? Next number, serial. How can you read this number? So this is also 4-digit number. So when the 4-digit number comes, you have to speak the 1000. Right? अभी हमने देखा 4-digit कौन सा होता है? Always we start the places from right side. हमें right side से start करना है, not from here. Right? So 2000. Who is on 1000 place? देखो आपको पता है 4 वाले place 1000 होते हैं. 2000. Is there any number on 100 place? No. तो कुछ नहीं लिखना है. Then tens और ones को साथ में पढ़ना है. 2050. समझ में आया? How to read the number? Okay. So the same way you write. हम यहाँ पे लिखेंगे TW2 THOUSAND 50. Right? So n लगा के लिख सकते हो. Without n also you can write FIFTY 50. Clear this students? समझ में आ गया आपको? The next one. So students आप नंबर को देख के डिसाइड कर सकते हो. So this is a 1 to 3-digit number, right students? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे 786. 3-digit number means start from 100, right? So 786. Same way you write SEVN 7 HUNDRED 100 86. Then SIX 6. Understood? 786. Clear this? समझ में आ गया? Okay, now this one. This is also 3-digit number. That means 100. जो भी 100 के प्लेस में उसको बोलना है. यहाँ पे 7 था तो हमने 700 को लिखा है. Right? This is 1 is on 100 place. So 100 और 10 और 1 ये दोनों को तो ऑलवेज साथ में पढ़ना है. So 40 40. हम यहाँ पे लिखेंगे ON 1 HUNDRED 100 हो गया. 40 की स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है FORTY आएगा. जब अगर आप FOURTY लिखोगे तो दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग. राइट? 40 की स्पेलिंग में यू नहीं आता है. क्लियर दिस? ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है? नेक्स्ट दिस इज हाउ मेनी डिजिट नंबर? 1 2 3 and 4 डिजिट. दैट मींस स्टार्ट फ्रॉम 1000. समझ में आ रहा है? देखो अपने यहाँ पे बताया. सो विच नंबर इज ऑन 1000 प्लीज? 5. तो कैसे पढ़ना है? 5000. 100 70. तो कैसे पढ़ना है? 5170. क्लियर? द सेम वे यू हैव टू राइट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे FIVE 5 THOUSAND 5100. ONE 1 HUNDRED 100. Okay, 70. So I'm writing 70 SEVENTY 7. Okay, 5170. Clear about this? समझ में आ गया students? Okay, now let's see the next one. तो फिर यहाँ पे students, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 and 5 digits number. तो कैसे पढ़ोगे आप? पहले हम बेसिक लिखते हैं ऊपर. So
दिस इज वंस प्लेस, प्लेसेस आपको राइट साइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है, राइट हैंड साइड से। वंस, दिस इज 10, दिस इज 100, 100 के बाद कौन सी प्लेसेस आती है, 1000 हो गया है, 100 आफ्टर 1000। नाउ वन मोर डिजिट इज देयर, सो 1000 नेक्स्ट विच प्लेस विल कम, क्या आएगा, 10,000, तो उसके लिए लिखेंगे TTH। देखो, O for ones, T for tens, H for 100, TH for 1000 and TTH means 10,000। क्लियर है, तो ये याद रखना है, 5 डिजिट नंबर है। अब आप उसको कैसे बोलोगे, हाउ कैन यू स्पीक इट, तो क्या करना है स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज अ दिस टू नंबर, दिस टू डिजिट 1000 एंड 10,000, उसको आपको साथ में पढ़ना है। जैसे हम यहाँ पे 4 डिजिट था तो 2000 की प्लेस पे 2000 पढ़ते थे ना, तो सेम वे हियर जहाँ पे आपको 4 और 5 डिजिट, ये जो 1000 और 10,000 प्लेस के जो डिजिट है उसको साथ में पढ़ना है, तो ये बन जाएगा 10,000। ओके, हियर नो नंबर इज गिवन, 0 ही है, सो द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 10,000। याद रहेगा, जैसे हम 1 और 10 को साथ में पढ़ते हैं, तो अब जब 1000 और 10,000 हो उसको भी साथ में पढ़ना है, तो ये बनेगा TEN 10, THOUSAND 10,000। ओके, नो नंबर इज 100 10 से वंस, तो वो कुछ नहीं आएगा। क्लियर दिस, नेक्स्ट वन। नाउ दिस वन इज आल्सो 5 डिजिट नंबर, राइट, सो अगेन हम क्या करेंगे, 5 डिजिट नंबर, और तो जैसे भी 5 डिजिट नंबर है आपको क्या करना है, दोनों को साथ में पढ़ना है। सो 14,000 कैसे पढ़ोगे, 14,000, दिस इज 100 प्लेस 200, 50, 40,250। जैसे आपको नंबर पढ़ना आएगा द सेम वे यू कैन राइट। ओके, अगर आप नंबर पढ़ने में गलती करोगे तो आप लिखने में भी गलती करोगे, समझ में आया। सबको क्या करना है, जब भी 5 डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर लिखे तो आपको याद रखना है ये फर्स्ट जो 4 और 5 डिजिट वाला नंबर है उसको साथ में पढ़ना है। सो 14,000, हम यहाँ पे 14 की स्पेलिंग लिखेंगे, 14 की स्पेलिंग करती है ना आपको, सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 14, FOUR TEEN 14, राइट, 14,000, 1000 की स्पेलिंग एक बार याद करोगे तो वो इजी रह जाएगा, THOUSAND 14,000। 2 is a 100 place, so हम यहाँ पे लिखेंगे 2, I don't have space, so I am writing down 200, then 50, 50, so what is the spelling of 50, FIFTY 50। Clear this, easy है ना। Okay, then next one, this is also 5 digit number, को लिखने से ही पता चल जाएगा, you can count also। So now what can you do, this 2 has to speak together, so first you speak the number and then you write, पहले बोलो then you write। okay, so 23,000, is there any number in 100 place, कोई है, no, okay, तो कुछ नहीं आएगा, then इसको साथ में पढ़ेंगे 20, what is the number, 23,020, so the same way you have to write, हम यहाँ पे लिखेंगे 20, 20 लिखना है 23, 23, then you write the 1000, THOUSAND 1020, 20, 20, हो गया क्लियर। So 23,020, right students? Now the last one. So how many digit number? 1, 2, 3 and 4. If the 4 digit number, so start from 1000. So first you read the number. So 9,999. Okay, it's very easy. 9 is 1000 place, so 9,000 हो जाएगा। आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है, हर बार इसको लिखने की जरूरत नहीं। So 9 is 1000 place, so 9,000. 9 is 100 place, so 900. And this 2 has to stick together, that is a 99. The same way you have to write here. Okay, so हम यहाँ पे लिखेंगे 9, THOUSAND 1000, NINE 9, HUNDRED 100, NINETY 90. Okay, 99, NINE9, समझ में आ गया। So 9,999, क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको। ओके, आप जैसे पढ़ते हो वैसे ही नंबर को लिखना है, बट विद द करेक्ट स्पेलिंग।
ओके, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। समझ में आ गया? सो हियर वी हैव लर्न द 3 digit number as well as 4 digit number and 5 digit number also. Okay students? Okay students, so next question is solve the following. Solve the following means here the addition and subtraction both the sums are given combined. Okay, so here you already learned the sums of 3 digit number. Now in the 4th standard you are doing the addition with the 4 digit, even do the subtraction or addition with the 5 digits also. Okay, the same way you have to do just we did before it. Okay, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करना है, but here only the digits are increasing. Okay, अब 3 की जगह 4 digit 5 digit का addition subtraction करेंगे. So it's very easy. See here I have written the question. So one by one we will solve it. So read the first question. 835 plus 1789. यानी 835 में हमें 1789 को प्लस करना है. You already aware of the sign. This is the plus sign. Plus sign means you have to add the number. Okay, जब भी हमें टोटल करना होता है तो हम प्लस करके करते हैं ना. The same. See, this is the question. So first you have to arrange it in column. जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो उसको अरेंज करना है with the places and then you have to solve it. So here I am showing the solution how to do it. So our first question is 835 plus 1789. Okay, अब उसको हमें सॉल्व करना है. So पहले हमें क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे. अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लिखेंगे a. ओके, सो अरेंज करने के लिए पहले हम उसकी प्लेसेस लिखेंगे 1s, 10s, 100 and 1000. Why I have written the 4 places? Because this is the 4 digit number, right? So first you write the places, and when you write the places, you have to make a space between it. इसके बीच में आपको space लगानी है, ठीक है? Okay, so this is 835. So we write on H, यानी 100 से start करेंगे 835. Okay, don't do from here. यहाँ से नहीं लिखना है. If you write from here, so number will be changed. वो बन जाएगा 8350 and that will be wrong. Okay, plus लगाएंगे यहाँ पे then 1789. Okay, अब उसको ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? सो एज यू नो दैट जब भी हमें एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, हम कौन सी प्लेस से स्टार्ट करते हैं? 1 प्लेस से. मीन्स स्टार्ट फ्रॉम दिस नंबर. ओके, इनको पहले ऐड करना है देन नेक्स्ट करके ऐड करना है, ठीक है? सो डोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर. अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे आंसर नहीं आएगा. दिस विल बी रॉन्ग. सर रॉन्ग है. सो स्टार्ट करेंगे 5 + 9 करेंगे. 5 + 9 कितना होगा स्टूडेंट्स? 14 होगा. कैसे काउंट करना है? 5 में 9 को ऐड करो या 9 में 5 में ऐड करो, दोनों चलेगा, ठीक है? सो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 14. सो 14 में 4 आपको 1 की प्लेस वाला नंबर यहाँ लिखना है और 10 नंबर को कैरी ओवर करना है, ठीक है? अब 10 प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे तो कौन कौन से नंबर है? 1 then 3 then 8. ये तीनों को ऐड करना है, ठीक है? सो अब यहाँ पे करेंगे 3 + 1 4, 4 + 8 12. ओके, आपको काउंट करना आता है. So this becomes 12. Then 2 will be right here and 1 as a carry over. Carry over नंबर को सर्कल पे लिख देंगे, ठीक है? अब हम 100 प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे. कौन कौन से नंबर है? 1, 8 and 7. So 1 + 8 is 9 and 9 + 7. So कैसे करोगे? आप काउंट करोगे, देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. 7 नंबर्स को आपको फॉरवर्ड जाना है तो आंसर आएगा 16. So 16 आएगा और यहाँ पे जो 6 से यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे, ठीक है? आप देख सकते हो 1000 प्लेस पे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो चाहो तो पहले से 0 लगा सकते हो, ठीक है? नाउ ऐड द 1000 नंबर्स. 1 + 1 2. सो व्हाट इज आवर आंसर? 2624. इजी है ना स्टूडेंट्स एडिशन? ओके, तो आपने 3 डिजिट दिया होगा तो यू कैन इजीली डू द 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर. ओके, सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज B. Whatever number I am solving, you have to put the correct sequence. Okay. Okay. Now 2514 plus 1783. Okay. So both are 4-digit number. So first you write the places 1s, 10s, 100 and 1000. Okay. Now write here 2514 plus
1783. हो गया स्टूडेंट्स? इजी है ना अरेंजमेंट? ओके, दे बोथ आर 4 डिजिट नंबर, सो नथिंग इज वरी। बस स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, हमें वन प्लेस से स्टार्ट करना है और नंबर को पहले ऐसे स्पेसेस लिखनी है, देन यू हैव टू अरेंज इट। ओके, ऐसे अरेंज करना है आपको। इनका टोटल करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, दैट इज द रॉन्ग मेथड। इन मैथ्स the steps are very important. You have to solve with the method and then you write the answers, right? Directly answer लिखोगे you will not get the full marks, right students? So पहले ऐसे arrange करना है, then you have to solve. So इसे बोलते हैं arranging columns. Okay, column में arrange करो and then solve. तो start करेंगे 1 से. So 4 plus 3 होगा 7. अब 10 के नंबर को ऐड करेंगे, 1 plus 8 is 9. Now 100 प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे, 5 plus 7 कितना होगा? 5 plus 7 12. Okay, so 2 will be right here and 1 is a carry. अब 1000 की प्लेस में जितने नंबर उसको ऐड करेंगे, so 1 plus 2 3, 3 plus 1 4. So our answer is 4 is a 1000 place, so 4000. 2 is a 100 place, so 297. Easy है ना स्टूडेंट्स? So arrangement जैसे यहाँ पे देखा आपने, arrangement क्या से करोगे, so you can get the answer very easily, right? Let's see the third one. तो हम यहाँ पे लिखेंगे C, right? What is C? 900 minus 101. Solve the following means आपको साइन को ध्यान में रख के करना है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है? तो वो गलती नहीं होनी चाहिए. When you copy the number at the time of take, अगर आप यहाँ पे नंबर कॉपी कर रहे हो तो यहाँ 2514 दिया है, तो गलती से यहाँ पे 2500 की जगह 300 लिख दोगे तो आपका आंसर फिर भी रॉन्ग होगा. तो कॉपी करने में भी आपको ध्यान रखना है. तो हमारा नेक्स्ट वाला है 900 minus 101. So पहले हम अरेंज करेंगे 1, 10 and 100. Here we just write the 3 places because tradition number, right? So हम यहाँ पे लिखेंगे 9. Here also you make some space. इनके बीच में थोड़ी जगह रखो because ये माइनस है तो borrowing ऊपर आएगा, ठीक है? And 101. नंबर को अच्छे से स्पेस देके अरेंज करो. अब पास पास लिखोगे तो आपका कैरी ओवर भी रॉन्ग हो सकता है, borrowing भी रॉन्ग हो सकता है, तो ध्यान रखना है. So again 900 minus 101 लिख लिया. You start from 1 place. Subtraction हो तो भी 1 place से start करना है. So 0 minus 1 is possible. Subtraction जब भी करते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर क्या चाहिए? बिगर. ओके, अगर बिगर होगा तो ही subtraction होगा. अगर बिगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? borrow करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर से लेना पड़ेगा, borrow करना पड़ेगा, ठीक है? तो 0 में से 1 पॉसिबल नहीं है because 0 is smaller than 1. हम क्या करेंगे? borrow करेंगे. तो borrow करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर भी 0 है तो पॉसिबल नहीं है. 0 के मीन्स कुछ भी नहीं है उसके पास. सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर से borrow करेंगे, यानी हम यहाँ से borrow करेंगे. जब भी हम borrow करते हैं तो अगर 9 है तो उसमें से 1 नंबर लेस हो जाएगा, ये बन जाएगा 8. ओके, और जो यहाँ से 1 नंबर कम हुआ है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे. आप चाहो तो 0 को कट करके भी ऊपर 10 करके लिख सकते हो, ठीक है? ओके, अब 10 हो गया पर हमें ये वाले नंबर को भी देना है. वापस यहाँ से नंबर कम कर देंगे, 10 की जगह बन जाएगा 9 एंड ये नंबर बन जाएगा 10. समझ में आया? जो कट करते हो वहाँ से -1 करो और वो नंबर को नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड कर दो, ठीक है? नाउ 10 minus 1 is 9. 9 में से 0, अब ये कट हो चुका है, उसको ध्यान में नहीं लेना है. नाउ 9 minus 0 9 and 8 minus 1 is 7. So our answer is 799. Easy students? Okay, so now let's see the D one. D. What is the D? Here 5 digit number 31,079 minus 2,110. It's very easy, just the arrangement. हम यहाँ पे 5 digit में हम लिखेंगे 1, 10, 100, 1000. TH means 1000. और 10,000 में हम लिखेंगे TTH. TTH का मतलब होता है 10,000. तो पहले प्लेसेस देख ली. नाउ यू राइट नंबर. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 31,079 माइनस कौन सा नंबर है? 2,110. तो यहाँ पे लिखेंगे 2,110. ओके, अरेंजमेंट हो गया. अगर अरेंजमेंट ध्यान से करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है? अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे वापस यहाँ पे. सो 9 minus 0 क्या हो जाएगा? 9. ओके, नाउ 7 minus 1 द सेम वे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है. आपको डिजिट को नहीं देखना है. ओह, दिस इज 5 digit number, हाउ आई कैन डू इट? इट्स नॉट, इट्स वेरी इजी, राइट?
ये यहाँ से 28,000 के बाद आप कॉमा लगाओगे, ठीक है। 28,969 is the answer. So students, I hope to understand the topic of addition and subtractions. We will see the more addition and subtraction sums in my next video. If you have any doubt regarding, you can ask in comment box. Okay. So I hope you understand both the topics, number names as well as the addition subtraction sums also. So thank you students.